आप एक शब्द में बता सकते हैं, परिवार का तारीफ करो परमेश्वर के इस परिवार के लिए। आप बता सकते हैं आपका नाम, आपकी दोनों बेटियां आप हाँ जी। यही हैं? हाँ जी पापा दोनों जी। आ गई हैं? हाँ जी पापा जी। अच्छा, क्या हुआ था? आप पहली बार कैसे आए थे शादी पर? आप क्या बता रहे थे मेरे को जब आपसे मिला? ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਰਿੰਕ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, VIP ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾ ਆਇਲ ਲਗਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾ ਆਇਲ ਲਗਾਤਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1020 ਬੋਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਸ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਸਬੰਡ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਚਰਚ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ ਔਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੰਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਭਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? बेटी, दोनों बेटियां मेरी कनाडा और एक PR हो गई है। और साडा फाइनेंस प्रभु ने इतना ब्लेस किया कि मैं दस नहीं सकती। दोनों बच्चे कनाडा पहुंच गए। हाँ जी। हस्बैंड हील हो गए। बच्चे, हाँ जी पापा जी तुसी मैनू कहा सी कि ताड़े बच्चे गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, और सचमुच मेरे प्रभु ने मैनू इन्ने वधिया बच्चे दिते। मैं प्रेयर करदी कि सब दे बच्चे इदां दे होण। सुनो, अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी वचन भी है और 2 टेस्टिमनी है। अगर इनकी टेस्टिमनी आपको खुल के बताएं, आपके कान खुल जाएंगे पूरी तरह से। मैंने अपनी मैरिज पे क्या फैसला किया था? मैंने कहा था मेरी मैरिज मैं चर्च के लोगों के साथ करूंगा, बंदगी करके हम करेंगे मैरिज। आप जानते कई बार, अब मेरे को देखो नहीं पता, मेरी मैरिज हो रही है, मेरी वाइफ साथ है, हम अपने काम में बिजी हैं, कुछ सामान, वो चर्च, सारे काम, और हमें नहीं पता कोई बंदे ऐसे आकर बैठे हैं जो सिर्फ मैरिज देखने के लिए आए। इमेजिन करो अगर यहां भी मैरिज के ऊपर गाने बज रहे होते, शराब चल रही होती, तो उनको कोई फर्क नहीं लगता। उनको लगता है जिस तरह हाँ हमारी मैरिजेस होती हैं, इनकी भी मैरिजेस हैं, तो शायद वो आते, अटेंड करते, को खाते पीते चले जाते। लेकिन उस मैरिज में परमेश्वर की हुजूरी थी, क्योंकि बंदगी चल रही थी, वर्शिप चल रही थी, तो परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखो, मेरे को नहीं पता कोई नॉन बिलीवर कितने बैठे हैं,
मैं पता नहीं कितनी लोगों के मुंह से सुन चुका हूं, जब मैं उनसे जरूर पूछता हूं, अच्छा आप चर्च में कब से आ रहे हैं? मैं 17 साल से आ रहा हूं, मैं 15 साल से आ रहा हूं, मैं आपकी शादी से आ रहा हूं। अच्छा शादी कैसे? 2014 में आपकी शादी हुई थी ना, मैं उस मीटिंग में आया था, मैं तब से चर्च आ रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों को मैंने ये कहते सुने, मैंने खुद। अब इमेजिन करो, वो टाइम था परमेश्वर के नाम को महिमा देने का, मैंने दी। मेरे को नहीं पता किस किस की लाइफ में काम हो रहा है, मैं तो स्टेज पे हूं। लेकिन उस मैरिज की वजह से, प्रभु के काम की वजह से कुछ लोग ब्लेस हो रहे हैं, कुछ लोग हील हो रहे हैं, कुछ लोगों की जिंदगियों से फाइनेंशियल श्राप जो है वो खत्म हो रहे हैं। आप इमेजिन करो, अब यहां लिखा है कि स्पाइन फ्रैक्चर, डिप्रेशन में चले गए, शराब का नशा करते थे। आपने लिखा कि आप अपनी बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पापा जी सचमुच में मतलब प्रभु ने साड़ी औकात तो ज्यादा दे दिता सानू, और मेरे हस्बैंड ने 300-400 रूहां बचाइया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक फैमिली क्या बता रही है, और ये ऐसे कितनों की टेस्टिमनी होगी। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो। जब प्रभु की महिमा करने का समय होता है, आप जानते हैं आप ब्लेस क्यों होते? मेरे को नहीं पता कितने लोग ब्लेस हो रहे होंगे उस मैरिज से, लेकिन कैसे मालूम होता है कि परमेश्वर का मैं काम कर रहा हूं, मैं उसकी महिमा कर रहा हूं? जब ये ब्लेस, मुझे नहीं पता कि ये ब्लेस हो रहे हैं, पर ये जब ब्लेस होते हैं, आपको नहीं पता किसी को, हम भी ब्लेस हो रहे होते हैं साथ साथ। मेरे रास्ते भी खुल रहे होते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो रही होती हैं। मेरे को नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी वजह से किसी की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही, मेरी वजह से किसी के घर में आशीष आ रही। तो परमेश्वर देखता है कि अच्छा ये बंदा मुझ में है और ये खुश है और इसके घर में बरकत आ रही है, वजह कौन है? अच्छा वजह ये है, इसकी वजह से ऐसे इसने स्टैंड लिया कि मैं अपनी मैरिज पर गाने नहीं बजाऊंगा, शराब नहीं चलेगी, मेरी मैरिज के ऊपर कोई गंद मंद नहीं चलेगा, परमेश्वर की महिमा होगी। अच्छा इसकी वजह से ये परिवार ब्लेस हुआ है, तो परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा, जो तू दूसरों के साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा। तो ऐसे कितने परिवार होते हैं जो चर्च में आके ब्लेसिंग पाते हैं। अब वो मुझे पैसा थोड़ी देते हैं कि ये हम आपकी वजह से ब्लेस हुए जी, ये लीजिए पर्सनल पैसे आपके लिए। लेकिन परमेश्वर मुझे अपने तरीके से ब्लेस करता है, क्योंकि मैं दूसरों की ब्लेसिंग का अगर कारण बन रहा हूं तो परमेश्वर देखता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब एक अनाथ, जब एक विधवा तेरे कारण रोएगी, तो मैं उस आंसुओं को देखकर उसका न्याय करूंगा और तू भी रोएगा। तो इसीलिए अयूब कहता था कि मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती है, मैं अनाथों का सहायक रहा हूं। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो अयूब जो था उस देश का सबसे अमीर इंसान था। 7,000 ऊंट, आप इमेजिन करो, आज का ऊंट तब का ट्रक था, तो तब ट्रक नहीं होते थे, टाटा ट्रक नहीं चलता था, ऊंट लेके जाते थे सामान को। तो इमेजिन करो एक बंदे के 7,000 उसकी ट्रांसपोर्ट थी, ट्रकों की, गधे थे, घोड़े थे, सब कुछ था, बहुत अमीर हो गया। और जब वो अपने बता रहा है रीजंस को कि मैं अमीर हूं, और बीच में बताता है कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं अनाथों का सहायक हूं, विधवा मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी। जो परदेसी होते थे मैं उनका हाल जानबूझकर पूछ लेता था, पुछवा लेता था हाल उनका, बहाने बहाने से उनका हाल पूछता था। आज लोग परदेसियों को गाली निकालते हैं, वो तो यूपी से आया है, ये बिहारी हैं, ये पंजाबी, ये फलाने हैं, टमकाने हैं। और जो वो करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ भी दूसरे वैसा ही करते हैं फिर, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। और जब आप प्यार करते हैं, जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, परमेश्वर आपको देखता है और फिर वो आपको वहां से ब्लेस करता है जहां से आपने सोचा भी नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और यही कारण है कि जब आप परमेश्वर का काम करते जाते हैं, आप परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए गए, आपने किसी को पर्चा दिया, वो घर मसीह में आ गया, उस घर से कलेश खत्म हो गया, शराब खत्म हो गई, दारू खत्म हो गई। तो जब वो घर बचता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, तो परमेश्वर ये भी देखता है कि ये क्यों बचा,
किसके द्वारा बचा? अगर वो आपके द्वारा बचा, आपके पंफलेट के द्वारा बचा, तो आपको बरकत मिलना 100% तय है और शैतान इसे कभी रोक नहीं सकता। जितना कोई जादू टोना रोक नहीं सकता उसको। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यही रीजन है, जब आप उत्तम रीति के साथ प्रभु के साथ पवित्रताई में चलकर सेवा करते हैं, आप ब्लेस होते हैं। आपकी ब्लेसिंग का कारण यह नहीं है कि जो जिनको आप ब्लेस कर रहे हैं वो आपको कोई फायदा दें, लेकिन परमेश्वर आपको अपने तरीके से, अलग तरीके से, फेवर के साथ, पता नहीं किन किन तरीकों के साथ वो आपको भी ब्लेस करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, मेरे भाइयों, भले काम करने में हियाव मत छोड़ो। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तुम मसीह में मेहनत करोगे, तुम्हें फल मिलेगा। इधर से नहीं मिलेगा, जिसकी जिंदगी में तुमने किया वहां से अगर नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो पानी की जब पाइप लीक करती है ना घर में, तो जब वो एक तरफ से पानी नहीं जा पाता, वो दूसरी तरफ से चल जाता है, लेकिन जाता जरूर है जब तक लीकेज को सेट ना किया जाए। तो ब्लेसिंग अगर एक तरफ से नहीं आएगी, शैतान एक काम को बंद कर देगा। यीशु के नाम में आज से 7 दिशाओं से आएगी, 4 दिशाओं से आएगी। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। तो जब आपके घर में मैरिज है, आप लोगों को इनवाइट करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें जो मसीह में नहीं, अपने मोहल्ले वालों को इनवाइट करें जो मसीह में नहीं, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इनवाइट करें, स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट करें, और उस मैरिज में बंदगी रखें, वर्शिप करें, आराधना करें, प्रभु को महिमा दे। जहां खुदा को महिमा देनी होती है वहां आप शैतान को महिमा देते हैं। वहां शराब चल रही होती है, वहां हर गलत काम चल रहा होता है, और फिर आपको लगता है कि वो मैरिज आपके लिए बरकत बनेगी? क्या आपको लगता है कि आप उसमें सफल होंगे, आप स्मूथली चलेंगे, अच्छी रीति के साथ चलेंगे? जहां खुदा को महिमा देनी थी वहां बोलते नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं मैरिज करनी। सारी उम्र लोग चर्च आते हैं, मां उनकी क्वायर में है, और मैंने देखा उनके बच्चों को जब प्रभु की महिमा करने का टाइम आता है तब ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो अन्य जातियां करती हैं। वो टाइम तो परमेश्वर को महिमा देने का था। अगर आपने प्रभु को महिमा दी होती, वो वापस आप ही के लाइफ में वापस आती। प्रभु कहता, तू मुझे इज्जत दे रहा है लोगों के बीच में, मैं तुझे इज्जत दूंगा पूरी दुनिया के बीच में। तुम मुझे इज्जत दे रहा है अन्य जातियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। और मैं भाई साहब, जब प्रभु इज्जत बढ़ाता है, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी जीन्स क्यों ना हो, तुम्हारी इज्जत नहीं खराब कर सकती। मैं आपको बता रहा हूं, इज्जत को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, कम करने वाला भी परमेश्वर है। वो कहता, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही जख्म देता हूं और मैं ही मरहम पट्टी करता हूं। बाइबल कहती है, जब तक मनुष्य को ऊपर से कुछ ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता है। जब ऊपर से आती है इज्जत, कोई दुनिया की ताकत उसे खराब नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत उसे नीचा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम भी है। जो ऊपर से आता है दुनिया उसे छीन भी नहीं सकती है। आज से अपनी लाइफ में अगर प्रण कर लोगे ना कि प्रभु, मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलेगी, मेरे जीवन से तेरे नाम को आशीष मिलेगी, तेरे नाम को लोग आशीषित करेंगे कि धन्य है परमेश्वर, धन्य है उसका नाम, कि तेरे नाम को लोग महिमा देंगे मेरे कारण। वायदा कर लो परमेश्वर से। और मैं आपको बता रहा हूं, संडे का जीवन, चर्च जाने वाला जीवन, ये कोई प्रभु को उस तरह से महिमा नहीं देता। संडे के बाद का जीवन, जो संडे आप सुन के जाते हैं, उसके बाद का जीवन जो सोमवार और मंगलवार और पूरा हफ्ता आप बिताते हैं, उसमें आप कैसा जीवन जीते हैं, उससे मालूम होता है कि वाकई आप मसीही हैं, वाकई आप परमेश्वर के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, आप नमक हैं, आप ज्योति हैं, परमेश्वर का रास्ता दिखाने वाले हैं। आमीन। ऐसा करके देखो, लाइफ स्टाइल ऐसा बनाकर देखो कि आपकी वजह से आपका पड़ोसी, आपका कोवर्कर, आपका साथी जो आपके साथ सेवा करता है, उसके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि आप पवित्रताई में हैं। क्योंकि जब आप व्यभिचार में होते हैं, लोगों को भी हियाव होता है व्यभिचार करने का। जब आप चोरी कर रहे होते हैं, आपके बच्चों के लिए फिर चोरी करना बड़ी आसान बात होगी। अगर बाप चोर है तो बच्चा डबल चोर बनता है। अगर बाप शराबी है
तो बाप बोलता है बेटा कुछ 2 पैग कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा वो 2 पैग नहीं, वो 10 पैग लगाए। तो ये अपनी लाइफ में मेक श्योर करो कि आप अपनी जिंदगी से प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में तारीफ करो खुदाबंद को जोर से। आप झुक सकते हैं, जो आपकी स्पाइन जो फ्रैक्चर हो गई थी, चल सकते हैं। ओ जीसस, ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। आप कई बार आप उन व्यक्तियों को देखते हैं जो टोटल बेड के ऊपर थे, हिल भी नहीं सकते थे, और जब वो पहले दिन स्लो चलते हैं, दूसरे दिन तेज चलते हैं, भागने पे आ जाते हैं, आपको मालूम होता है मेरा परमेश्वर जीवित है, बड़े काम कर रहा है वो आज आपकी लाइफ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।